Good afternoon, students. Yesterday we talked about the diagrammatic representation of the respiratory system present in the human body. So, how the respiration takes place? The whole process is here. Now, when we are inhaling the air, so air enters through the nostril first. In the nostril, air and mucus that is present. We know that मॉर्निंग में या सर्दी में जब हमें जुकाम वगैरह हो जाता है तो हमारी नाक से म्यूकस रिलीज होता है, जो गंदगी निकलती है, दैट इज़ व्हाट म्यूकस, दैट इज सीक्रेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द nostril. Now these hairs and mucus present in the nostril, they trap the dust particle which is present in the air. So what is the function of this one? Air and mucus, that they filter the air. They filter the air. It then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enter the lungs. Now with the help of the pathway pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles, it enter in the lungs. Clear? What? The mainly the oxygen. After filtration by the nostril, air enter inside the nostril. After the filtration, oxygen enter in the lungs. Some other gases, they are also enter inside the lungs, but main is the oxygen. Here, after entering, when they are entering the trachea, that is having rings of cartilage which prevent it from the collapsing when there is no air in the trachea. जब जिस समय एयर नहीं होती ट्रैकिया के अंदर, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है उसको कोलैप्स होने से या कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होने से बचाता है. The bronchi divided into a smaller tube called bronchiole which end in a tiny air sacs called alveoli. So when we talk about the lungs, actually the lungs, that is alveoli. सेकेंड पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं आप लोग, दिस पिक्चर, this is actually what? This is lungs. What we call this one is alveoli. So here the oxygen reaches and they swell. Alveoli are swell with the help of oxygen. These alveoli is supplied with the blood vessel through which exchange of gases takes place. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन एल्वुलाइज के ऊपर क्या है, कैपिलरीज, ब्लू एंड ग्रीन कलर कैपिलरीज आर देयर. सो विच वन इज ब्लू, दे आर वेन्स, and which one is the red, they are arteries. So here on the basis of 8th class we know that what are arteries and what are veins. Arteries which takes the pure blood, so they are oxygen rich, so they are red in color, and veins which carry the deoxygenated blood, impure blood, so they are blue in color. In the next topic what is transportation, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब कुछ, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए क्या है ये. तो ये एल्वुलाई के चारों तरफ कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सारे के सारे बंच बना के इसको कवर करके रहते हैं. और जो लंग्स के दोनों के बीच के जो लोब्स हैं यहाँ पे, इस जगह पर हार्ट होता है, तो ये हार्ट से ही आर्टरीज और वेन्स होती है, कनेक्टेड रहती है. सो हेयर
where the alveoli is present, the exchange of gases means O2 which is enter from the nostril that enter in the arteries और वहाँ से वो हार्ट के पास में जाती है, and CO2 which is released by the body that carries with the help of vein। तो हो क्या रहा, वेन CO2 लेके आ रही बॉडी से, जो एल्यूलाई से होती हुई वापस ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई से ट्रैकिया और उससे नाक से होती हुई बॉडी से बाहर आएगी। और ये जो ऑक्सीजन बाहर से आई है ये एल्यूलाई से होती हुई हार्ट से होती हुई आर्टरी से हार्ट के पास जाती है, हार्ट से होती हुई बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है और वहाँ पे फूड ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज़ करती है। This is the circulatory pathway what we are going to study in the next topic, transportation. So the alveoli help to increase the surface area of exchange of gases. So what is the role of alveoli? That they help to increase the surface area of exchange of gases, यानी आराम से ज़्यादा gases का exchange हो जाए। In the next slide, mechanism of breathing is given here. When we talk about mechanism of breathing, then that is only inhaling of O2 and exhaling of CO2 what we talk earlier। तो ये दोनों कैसे होते हैं, लेफ़्ट साइड में ह्यूमन बॉडी बताई हुई है और राइट साइड में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करके बताया हुआ है किस तरह से होता है। सो when we breathe in air, inspiration, this is called inspiration और inhalation, दोनों एक ही मीनिंग है। ब्रीद इन एयर, द मसल्स ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, विदाउट डायफ्राम ये नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग ह्यूमन बॉडी की, वहाँ पे डायफ्राम जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट मूव डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर खिसकता है डायफ्राम, एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। आप लोग खुद सांस लेके देखें, सांस को अंदर की ओर खींचेंगे तो आपको महसूस होगा क्या हो रहा है। जैसे ही सांस को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो बाहर की ओर आ रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं एरो बाहर की ओर किया हुआ है, यानी चेस्ट ऊपर की ओर आ रही है। ऊपर की ओर आने की मीनिंग क्या है कि एयर लंग्स की जो एक्सपेंशन की पावर है वो इंक्रीज हो रही है, यानी अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से एयर एंटर हो रही है लंग्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और ब्रीद इन एयर। राइट साइड में जो एक एक्सपेरिमेंटल व्यू दिए रखा है इंस्पिरेशन का, इसमें एक ट्यूब लगाई हुई वाइट ट्यूब और नीचे रेड कलर के बैलून इसी ट्यूब में लगे हुए हैं। तो बॉटल के नीचे की तरफ एक रबर सीथ लगाई हुई है जो डायफ्राम है एक्चुअल में। जैसे ही अंदर जाती है एयर तो क्या हो रहा है, बैलून्स फूल रहे हैं और ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड। दिस इज इंस्पिरेशन। अब इसका उल्टा अगर करते हैं हम लोग, जैसे ही सांस छोड़ते हैं, आप लोग सांस लेके सांस छोड़िए तब आपको महसूस होगा, सांस जैसे ही छोड़ रहे हैं चेस्ट कैविटी जो है, यानी हमारी जो चेस्ट है वो नीचे की ओर जा रही है। लंग्स का जो स्पेस है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो, और उस वजह से डायफ्राम जो है रिलैक्स्ड पोजीशन में आ रहा है और ऊपर की ओर आ रहा है। ऐसा होने से चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो एयर होती है लंग्स में वो बाहर की ओर निकलती है। दिस इज़ एक्सपीरेशन। राइट साइड में भी पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही एक्सपीरेशन हो रहा है बैलून्स जो हैं पिचक रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जैसे लंग्स होते हैं, और डायफ्राम वाली जगह जो सीथ लगा रखी है वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर यानी अपवर्ड साइड में जा रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ breathing।